that. So pay attention. This is one of the hot skill that every developer should be aware of. What are Java 8 features, and you should be able to write the code. You should not feel कि मुझे नहीं आता है. This is something bare minimum. जब आप कंपनी ज्वाइन करोगे तो आपको इसी में कोड दिखेगा एंड यू विल से कि हम ये तो हमने कभी पढ़ा ही नहीं. ऐसा नहीं होना चाहिए. दैट शुड नॉट हैपन. So what are the Java 8 features? The question might be, what are the Java 8 features you are aware of? So what are the Java 8 features you are aware of? What will be the question? What all the Java 8 features you are aware of? तो हम कुछ basics जो भी necessary है. There are a lot of features we'll talk about. So सबसे पहले आपको पता होना चाहिए what is functional interface. What is functional interface? Then you should know static methods. What is default methods? Then you should know lambda expression. You should know method reference. हो गया आपका मेथड रेफरेंस. और भी बहुत सारे हैं. उसमें एक और है ऑप्शनल बोल के. उसके बाद स्ट्रीम एपीआई. दीज आर समथिंग एडवांस. वी जैसे जैसे आपका लेवल बढ़ते जाएगा विल कवर ऑफ दैट. तो अभी जो चाहिए व्हाट आर दी फीचर्स यू आर अवेयर ऑफ यू कैन टेल. तो इसमें से सारी की सारी फीचर. स्ट्रीम एपीआई इज बिल्ट ऑन टॉप ऑफ कलेक्शन. कलेक्शन पढ़ने के बाद आप स्ट्रीम पढ़ सकते हो. अभी उसको पढ़ नहीं सकते. डिड आई स्टार्ट रिकॉर्डिंग? Optional is also one of the feature using which we avoid the null pointer exceptions. Really, that is for. तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं. पहले तो ये क्वेश्चन है कि व्हाट आर द जावा फीचर्स यू आर अवेयर ऑफ. फेमस इंटरव्यू क्वेश्चन है तो आपको फीचर्स पता होना चाहिए. ये सारे जावा 8 के फीचर्स है. यू शुड नो और यू मस्ट नो. आई कैन नॉट एम्फेसिस मोर ऑन दिस. इतना आपको जरूरत है इसका. You will understand the importance the moment I start writing the code. आपको मतलब I will not give a second chance, second thought. I am not going to explain the code what I am going to write once you done this. So you should be able to directly understand what is the code I am writing. That is my expectation. उस तरीके से ध्यान दो और समझ लो. नहीं तो बाद में आपको बस मैं कोड लिखता जाऊंगा और आप बस देखते जाओगे. ऐसा नहीं होना चाहिए. So let's try to understand what is function interface and one by one. So we have covered little bit of basics of function interface, but I will once again explain that. So my agenda is I will explain what is function interface, what is lambda expression and method reference. We'll try to explain that, but majority will focus on two things: function interface and lambda expression. What is functional interface? That we will try to understand. तो इंटरफेस इट इज एन जावा 8 फीचर. पहले तो आपको जावा 8 फीचर पहले भी थे फंक्शन इंटरफेस बट इट वाज फॉर्मली इंट्रोड्यूस इन जावा 8. तो इट इज एन इंटरफेस. इज एन इंटरफेस which contains single abstract method. It is an interface which contains single abstract method. You can think of like this, Sam. It is an interface which contains single abstract method. And remember, it can have any number of static methods और डिफॉल्ट मेथड. ये भी जावा 8 में अलाउड है. तो अलाउड नहीं है. तो फंक्शनल इंटरफेस का मतलब होता है एक ऐसा इंटरफेस जिसमें बस आपको एक ही एब्स्ट्रैक्ट मेथड देगी, ना कम ना ज्यादा. दिस इज एग्जैक्टली व्हाट यू विल हैव, right? And it may have any number of static methods. It may have any number of default methods. Simple. Now next, I want to create now function interface. Can we create object of this? Can we create object of an interface? We cannot create object of any other class. Cannot create object of any other class, right? Which is function or any. It is an abstract. मतलब किसी का भी हम object create नहीं कर सकते which is abstract. अभी फंक्शनल इंटरफेस कैसा दिखता है? व्हाट इज द सिंटैक्स? सिंटैक्स बहुत सिंपल. जैसे नॉर्मल इंटरफेस होता है उसके अंदर एक एब्स्ट्रैक्ट मेथड. दैट्स इट. नाउ इट इज अ गुड प्रैक्टिस. इट इज ए गुड प्रैक्टिस to annotate the functional interface with the @ functional interface.
अभी ये लिखना क्यों जरूरी है, ये लिखना चाहिए, इससे क्या होता है, कंपाइलर मेक श्योर दैट दिस एक्ट्स एज अ, और राइटिंग दिस मेक श्योर, इससे होता क्या है, राइटिंग दिस मेक श्योर, राइटिंग दिस मेक श्योर दैट कंपाइल टाइम, मतलब ये क्या करता है कि द इंटरफेस एक्ट्स एज एन, इंटरफेस acts as a functional interface only. Okay. Now I will just write that example. Now I have a interface keyword, and I say I, and this is not a function interface. So if I write void, now this is a functional interface. How can you can write this at the rate functional interface. नहीं लिखा दोगे चल जाएगा, but it is a good practice to write this at the rate function interface. ये बन गया आपका function. Now there are a lot of predefined functional interfaces. There are lot of predefined functional interfaces. ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है, what are the predefined functional interfaces are there in Java 8? So there are a lot of predefined functional interfaces such as runnable we have, comparator we have, predicate we have supplier, then we have function, runnable, comparator, predicate, supplier, function, uh, we have by supplier, by consumer, a lot of this. So by predicate, by supplier, by function, by predicate, by supplier, by function, और भी बहुत ज़्यादा है, और भी बहुत ज़्यादा है. This is something basic, right? Predicate, supplier, function, consumer. Consumer is also there. Consumer is something you should also. These are some functional interfaces are there. These are some of the functional interfaces are there. ओके तो आपको ये पता होना चाहिए इसके अंदर क्या मेथड्स है, वी विल एक्सप्लोर दैट, बट एटलीस्ट आपको नाम पता होना चाहिए, व्हाट इज फंक्शन इंटरफेस एंड व्हाट आर द प्रीडिफाइंड फंक्शन इंटरफेस. दिस इज वेरी मच इंपॉर्टेंट, आई कैन नॉट एम्फेसिस मोर. ओके, नाउ नेक्स्ट, हाउ टू create or provide, how to create functional interface subclass. How to create functional interface subclass. So there are multiple ways. By using traditional way, by using traditional way. Did I tell you lambda expression by any chance last time? बताया था मैंने आपको थोड़ा बहुत. Okay, so by using traditional way, by using anonymous function, by using lambda expression, by using reference, चारों के चारों आपको पता. तो पहला वाला आपको तो पता ही है, हाउ डू वी डू दैट. आई विल एक्सप्लेन यू द फर्स्ट, व्हाट इज बाय यूजिंग ट्रेडिशनल वे. ये आपको मैं पहले बताता हूँ व्हाट इज दैट. तो एटलीस्ट आपको ये पता होना चाहिए what are the different, how to create function interface. So you can say these are the different ways, and we will explore the first thing. So how do we create that? In this case आपके पास इंटरफेस होगा, तो you will have a interface, the interface music cell, and we have a interface, one method, void the music is the method we have. So how do we do this? How do we create a subclass? बहुत सिंपल है. तो extends, कौन बोला extend? Class, subclass, subclass, or you can say IMPL class, IMPL, or any, you can, your name will be music service IMPL, implements
और यहाँ पर आप लिखते हो void, यहाँ पर आप लॉजिक लिख, और यहाँ पर आप लिख सकते हो SOP ऑफ द फर्स्ट ऑप्शन, द फर्स्ट ऑप्शन। और यहाँ पर एक और बात आपको याद रखनी है, ये तो हो गया फर्स्ट वे। और इसका ऑब्जेक्ट कैसे क्रिएट करोगे आप, किसका ऑब्जेक्ट क्रिएट करोगे? तो कैन आई राइट, I write like this, music service is equal to न्यू, ये वाला क्लास का ऑब्जेक्ट, म्यूजिक सर्विस आई एम, लाइक दिस, कैन आई राइट ms डॉट म्यूजिक? कैसे लिख सकता हूँ मैं? कैन आई राइट दिस? लेट मी शो यू टू डू दैट। So I have an interface called as music service, और यहाँ पर एक मेथड है void play music, और इस इंटरफेस को बोलता हूँ मैं function. Yes, it is a function interface. Then what I will do, I will create a class music service IMDL implements service, और मैं ये सब कुछ लिखता हूँ एक मेन मेथड के अंदर implements, और यहाँ पर मैं मुझे क्या करना है, उस पर्टिकुलर मेथड को ओवरराइड। यहाँ पर मैंने लिख दिया कंडीशन, फिर यहाँ तक इंटरफेस लिखा, का सब क्लास क्रिएट किया। नाउ व्हाट आई विल डू, आई विल जस्ट क्रिएट अ ऑब्जेक्ट म्यूजिक सर्विस पेरेंट क्लास रेफरेंस चाइल्ड क्लास ऑब्जेक्ट, फिर ये वाला, और मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ म्यूजिक सर्विस डॉट म्यूजिक। ये क्लियर है सबको? आई होप यू नो दिस थिंग। Not this, please go and check out how to create a subclass. So by now you must be knowing how to create a subclass. आपको पता होना चाहिए कि सबक्लास कैसे क्रिएट करते हैं कोई भी इंटरफेस या abstract क्लास। प्लेइंग म्यूजिक, यहाँ पर हमने क्या किया, क्या पढ़ा हमने यहाँ पर, सबक्लास क्रिएशन ऑफ इंटरफेस इन ट्रेडिशन। Now what is the next thing we have, what is the next thing we have, using anonymous, or sorry anonymous function, anonymous class बोल सकते हो आप, using anonymous class. Now see here anonymous class, how can we do that? तो सेम चीज आपको यहाँ पर भी करनी है, और बस यहाँ पर आपको यूज करना है anonymous class। बस कंट्रोल सी कंट्रोल वी, हाँ कोई भी कॉपी कर सकते हो। अभी देखो मेरे पास एक इंटरफेस है, और मैंने उसका सब क्लास क्रिएट किया, और फिर मैंने उस सब क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट किया और उसे सेव किया पेरेंट क्लास रेफरेंस। तो मुझे ये दोनों प्रोसेस एक साथ करना है, ऑब्जेक्ट क्रिएशन आल्सो और क्लास डेफिनेशन। तो मैं यहाँ पर इसे लिखता हूँ ऐसे, तो मुझे ये न्यू सर्विस IAM के लिए कुछ लिखने की जरूरत नहीं, आई विल जस्ट डायरेक्टली राइट इम्प्लीमेंट्स वगैरह, ये कुछ लिखने की जरूरत नहीं है। आई विल जस्ट रिमूव दिस, और न्यू म्यूजिक सर्विस बन गया आपका एनोनिमस क्लास, एनोनिमस क्लास, ये हमने पढ़ा है।
Anonymous class, what is anonymous class? It is a class without name, which is used to create a subclass of either concrete class or abstract class or an interface. Now that can be any interface, not necessary function interface. It can be any interface or it can be any class, it can be any abstract class. उसका child class create करने के यहाँ पर हमने क्या किया, ये हो गया आपका क्लास डेफिनेशन। और यहाँ पर किसका ऑब्जेक्ट क्रिएट किया हमने, we have created object of an anonymous class that implements music service interface। और इंटरफेस इंप्लीमेंट करते हैं इसलिए हमने क्या कर दिया, मेथड भी ओवरराइड किया और ये मेथड आपने कॉल किया। ये वे सबको पता है, राइट? एवरीवन नोज दिस? ओके, so these two ways we have already seen lot of time. Everyone knows this anonymous class concept. Now I will take it further. Lambda expression. So formally we'll define what is lambda expression, and whatever the things we have written, we will just try to shorten that process. Right? Now, what is lambda expression? What is lambda expression? So first of all, you should know it is a Java 8 feature. It is a Java 8 feature, right? Then lambda expression is an anonymous function. Is an anonymous function which is a smaller, concise way of subclass creation of an functional interface. Okay, it is an anonymous function which is a smaller, concise way of subclass creation of an function. Lambda expression creation is nothing but an lambda expression writing is nothing but creating is nothing but there are a lot of stuffs. Creating a subclass of an functional interface, overriding the only abstract method. ये सारा प्रोसेस बहुत शॉर्ट एंड सिंपल तरीके से होने वाला है। ओवरराइडिंग द ओनली ऑब्जेक्ट, ओवरराइडिंग ओनली एब्स्ट्रैक्ट मेथड। उसके बाद क्लास डिफाइन किया, उसके अंदर दैट क्लास इज इंप्लीमेंटिंग फंक्शन इंटरफेस, ओवरराइडिंग द एब्स्ट्रैक्ट मेथड, और उसका क्लास डेफिनेशन हो गया, और उसका ऑब्जेक्ट क्रिएशन ऑल्सो, ऑब्जेक्ट क्रिएशन ऑफ दैट एनोनिमस क्लास। एनोनिमस काइंड ऑफ एनोनिमस क्लास ही बोल सकते हो आप, एनोनिमस क्लास। अभी टेक्निकली आप क्या कर रहे हो, लैम्बडा लिख रहे हो, मतलब वी आर जस्ट टेक्निकली राइटिंग lambda expression is nothing but आप क्या कर रहे हो, lambda expression लिख रहे हो, मतलब आप टेक्निकली क्या कर रहे हो, क्लास डिफाइन कर रहे हो, क्लास इंप्लीमेंट्स दैट इंटरफेस, मेथड ओवरराइड कर रहे हो, मतलब टेक्निकली क्या कर रहे हो आप, एक सिंगल मेथड ओवरराइड कर रहे हो। तो इतना तामझाम करने की जरूरत है क्या, क्लास इंप्लीमेंट्स एवरीथिंग कुछ करने की जरूरत है क्या, नहीं। डायरेक्टली मेथड इंप्लीमेंट कर रहे हो, वी आर जस्ट ओवरराइडिंग द मेथड इटसेल्फ। So lambda expression is the implementation of single abstract method. Here, what is the syntax? So did I explain you this syntax also? So we write functional interface name, then we have a reference name, then we write lambda expression.
So lambda expression will be method. Now this is exactly method body ऐसे लिखते हो आप, method कैसे लिखते हो आप? How do we actually define a method? Technically that we are doing here. So I will just write this optional input parameters और ये मेथड बॉडी, और इन दोनों को जोड़ने के लिए आप यूज करते हो ये एरो। नाउ लेट मी राइट दिस, आई विल सिंपली राइट दिस। मेरे पास कोई इंटरफेस है, लेट से कोई इंटरफेस है, इंटरफेस ए which has method void m1, ये method, assume this is a functional interface, this is not an ordinary interface, this is an functional interface। अब मैं इसे क्या कर सकता हूँ, मेरा ट्रेडिशनल अप्रोच क्या रहेगा? पहला ऑप्शन क्लास चाइल्ड इम्प्लीमेंट्स ए, और आप इस मेथड को ओवरराइड करे होंगे void m1, ऐसे करेंगे आप। दूसरा ऑप्शन क्या आपके पास, और फिर इसका ऑब्जेक्ट कैसे क्रिएट करोगे आप? ए इक्वल टू न्यू चाइल्ड, और आप मेथड कॉल करोगे ए डॉट m1, आपका ट्रेडिशनल वे, राइट? ये हो गया आपका पहला वे। दूसरा ऑप्शन क्या आपके पास? सेम चीज यहाँ पर भी, अभी आपने ये दूसरा वे कर दिया। दिस इज फर्स्ट टाइम डिफाइंड, दिस पर्टिकुलर थिंग इज डिफाइंड, ये आपका पहला ऑप्शन। तो ऐसे अब सेम चीज आप थोड़ा अलग तरीके से कर सकते हो। क्या कर सकते हो आप इसे? आप ये प्रोसेस एज इट इज यही यहाँ पर भी करो, टू डिफाइन द थिंग सेम हियर आल्सो, बट यहाँ पर न्यू चाइल्ड करने की जरूरत नहीं है। आप कैन डू न्यू चाइल्ड करने की जरूरत नहीं, तो आप सीधा सीधा ये क्लास एज इट इज उठा दो, और ये आप लिखो यहाँ पर, और ये क्लास कीवर्ड हटा दो, इम्प्लीमेंट्स हटा दो, बस आप ये लिखो और क्लास डेफिनेशन ऑब्जेक्ट क्रिएशन डन। और इस तरीके से आपने मेथड कॉल करी। ये कौन सा वे है आपका? एनोनिमस, दिस इज ट्रेडिशनल वे, दिस आई होप यू हैव प्रैक्टिस ऑन दिस स्टफ, दिस इज एनोनिमस। अब मुझे सेम चीज, मुझे अब यहाँ पर देख रहे हो आप क्या कर रहे हो, व्हाट यू आर एक्चुअली डूइंग, यू आर ओवरराइडिंग द मेथड ओनली। क्या कर रहे हो आप? मेथड ओवरराइड ही कर रहे हो ना, तो हम भी वही करेंगे। तो आई विल एग्जैक्टली राइट द सेम थिंग, आई विल सिंपली राइट, अभी सेम चीज यहाँ पर, ये थर्ड, अभी इसका थर्ड अप्रोच, अभी ये फर्स्ट हो गया, उसके बाद आप और आगे लेके जा सकते हो। आई विल जस्ट टेक इट अनदर अप्रोच, here I am going to take another approach as lambda expression। तो यहाँ पर मुझे क्या लिखना है, जो आपने मेथड डिफाइन किया था, राइट? यहाँ पर to exactly copy the method, आप यहाँ पर भी पेरेंट क्लास रेफरेंस यूज कर रहे थे, ए इक्वल टू पेरेंट क्लास रेफरेंस, और यहाँ पर आपको क्या करना है, कॉपी बस मेथड, और ये मेथड का बॉडी और मेथड पैरामीटर, और इन दोनों को आपको कंबाइन करना। अभी इट इज एन एनोनिमस फंक्शन, व्हाट इज लैम्बडा एक्सप्रेशन? इट इज एन एनोनिमस फंक्शन। आई विल जस्ट लेट मी राइट दिस आल्सो, इट इज एन lambda expression is an anonymous function which does not have method name, does not return on return type ये भी नहीं चाहिए, मेथड नेम नहीं होता, रिटर्न टाइप नहीं होता, एक्सेस स्पेसिफायर नहीं होता, एक्सेस स्पेसिफायर भी नहीं लिख सकते आप, एक्सेस मॉडिफायर भी जरूरत नहीं है, दैट्स इट। इस पैरामीटर्स अभी मैंने यहाँ पर लिख दिया, और यहाँ पर रिटर्न टाइप भी हटा दें, डेटा टाइप, मेथड का नाम हटा दो, और कुछ पैरामीटर है क्या? नहीं है, दैट्स इट। ये होगा आपका सेमीकोलन, आप फॉलो करो ए डॉट, दैट्स इट। अब देखो कितना काम आपका
ये है आपका लैम्बडा एक्सप्रेशन। Easy. So we'll write couple of lambda expressions and I will give the first interfaces and you tell me how do I write the lambda for that. ठीक है? Now lambda वे हमने यहाँ पर देखा था. Now if you see here I have to just replace this with the lambda. तो हमने हमारे पास इंटरफेस है और यहाँ पर देखो आप ये मेथड एज इट इज मैंने क्या कर दिया, कॉपी कर दिया और ये मेथड का बॉडी है, नथिंग बट अ मेथड बॉडी. ये मेथड बॉडी, ये मेथड का बॉडी, ये मेथड पैरामीटर्स और इन दोनों को जोड़ने के लिए ये वाला. अभी देर इज ओनली वन स्टेटमेंट इन माय मेथड बॉडी, तो ये कर्ली ब्रेसेस लिखना भी ऑप्शनल है, ये भी हटा दो. दैट्स इट, योर लैम्बडा एक्सप्रेशन. तो लैम्बडा एक्सप्रेशन लिखा मतलब हमने क्या किया, वी हैव क्रिएटेड अ सब क्लास ऑफ द फंक्शनल इंटरफेस. हमने क्या किया, फंक्शनल इंटरफेस का सब क्लास क्रिएट, नथिंग फैंसी. रन हो गया, लेट मी दिस, वही रन हुआ, एक मैंने नहीं सही lambda expression. So we'll write couple of lambdas, then you will get a good hand of that. Playing music, simple. चलो समझते हैं इसे और दिल में. Let's see this carefully. Now I have a functional interface, interface A, and I have method void m, और इसको मैं बनाता हूँ child. So I can make this as functional interface. You do not need to write anything. You can just simply write functional interface. This is functional. Sorry. Functional interface. And how do I create a subclass? नॉर्मल आपका तरीका, पहला ऑप्शन वे वन, ट्रेडिशनल ऑप्शन. मैं आपको तीनों करके दिखा रहा हूँ जिससे आपको थोड़ा पता चलेगा. ये है आपका क्लास चाइल्ड इम्प्लीमेंट्स ए, और यहाँ पर आप ओवरराइड करते हो मेथड वन. यही किया आपने, थोड़ा छोटा कर देता हूँ, और फिर आप क्या करोगे, ए वन इक्वल टू न्यू चाइल्ड, और आप करते हो ए वन डॉट, ये आपका पहला वे. वे टू आपका है एनोनिमस. एनोनिमस क्लास में आप ये दोनों प्रोसेस एक साथ करते हो. आई डू दिस लॉट ऑफ बोथ द थिंग्स इन वन शॉट. आपको क्लास डिफाइन ये अलग करने की ज़रूरत नहीं, आप इधर ही करो इसको. तो ये न्यू चाइल्ड ये आपको लिखने की ज़रूरत नहीं, इम्प्लीमेंट्स लिखने की ज़रूरत नहीं, ये पूरा हटा दो और यहाँ पर बस कंस्ट्रक्टर कॉल कर दो और ये बोलो इसे A2 और इसको A2. तो बाकी सारा मेथड डेफिनेशन एज इट इज़, और यहाँ पर बोलो ठीक है. ये आपका सेकेंड वे हो गया. Second way, we'll run this also and you'll see the difference. Traditional way, anonymous class way, M1 method from traditional way, M1 method from anonymous. ले रहे यहाँ पर. Now third, आपको जाना है lambda expression में. आप ये सब कुछ प्रोसेस टेक्निकली आप क्या कर रहे हो, एक मेथड को ओवरराइड कर रहे हो. क्या कर रहे हो आप, एक ही मेथड को ओवरराइड कर रहे हो. सो आई विल राइट A3 और यहाँ पर भी A3. ये सारा प्रोसेस, ये इतना सब कुछ क्यों करने की ज़रूरत है. आप सीधे सीधा उसको क्या करो, मेथड को ओवरराइड करो, ये पूरा हटा दो. अभी पूरा मेथड को हटा दो, मेथड का बॉडी एज इट इज लिखो, मेथड जैसे ओवरराइड करते हो वैसे करो.
और ये एक्सेस स्पेसिफायर हटा दो, एक्सेस मॉडिफायर हटा दो, रिटर्न टाइप हटा दो, मेथड का नाम हटा दो, और इन दोनों को आप ज्वाइन करो। एक्सेप्ट क्या आपका लैम्बडा वेट। अब इसमें भी उस पर्टिकुलर मेथड बॉडी के अंदर एक ही लाइन है, so you do not need to write the curly braces also, you can remove that also, can remove that also. Simple. Now let's check this demo 3. Now in this case I am going to create one interface that will be a functional interface called as number processor. क्या है? number processor. और यहाँ पर है एक मेथड जो रिटर्न कर दिए इंटीजर, और मेथड का नाम है प्रोसेस, और नंबर एक्सेप्ट करता है। क्या है? फंक्शनल इंटरफेस कॉल्ड एज नंबर प्रोसेसर, उसमें एक ही मेथड है, का नाम है प्रोसेस। इंटीजर एक्सेप्ट करती है एक वैल्यू, और रिटर्न भी क्या करती है? इंटीजर। तो हाउ डू आई क्रिएट अ एक्सप्रेशन? और आपका तरीका, आपको ट्रेडिशनल में जाना है तो जा सकते हो, लेकिन आई विल नॉट गो विद दैट नाउ, आई विल डायरेक्टली गो विथ नंबर प्रोसेसर, और इसको आप जो भी नाम दे सकते हो, लेट्स से रेफरेंस 1 एज इट इज पेस्ट कर दो। अभी यहाँ पर क्या क्या हटाना है आपको बता दो, और मेथड का बॉडी। अभी आपको वैल्यू रिटर्न भी करनी पड़ेगी। नाउ यू आर सपोज टू रिटर्न सम वैल्यू आल्सो। तो मेथड आपने इनपुट एक्सेप्ट किया, उस इनपुट के साथ आपको क्या करना है? लेट्स से आई एम गोइंग टू डू स्क्वायर, तो आप लिख सकते हो रिटर्न नंबर टू नंबर, उसका स्क्वायर बना दिया आपने जो भी नंबर था। अभी इसको बोल सकते हो आप SQRT, सिंपल। अब यहाँ पर बहुत सारी चीजें आप हटा सकते हो। मेथड का जो इनपुट पैरामीटर है उसका टाइप लिखने की जरूरत नहीं है, आप बस बोल दो नंबर, वो अपने आप उठा लेगा टाइप। उसके बाद आपके पास एक ही स्टेटमेंट है और एक ही रिटर्न स्टेटमेंट है, तो आपको डायरेक्टली आप ऐसे लिख सकते हो, वन नंबर एक्सेप्टेड एंड यू आर डूइंग स्क्वायर ऑफ दैट एंड दैट वैल्यू इज बीइंग रिटर्न, दैट्स इट। तो आपको कॉल कैसे करना है, आप इसे कॉल कैसे कर सकते हो? हाउ कैन वी कॉल दिस? SQRT डॉट प्रोसेस, और मैंने इनपुट दिया 10, व्हाट इज द आउटपुट? 100। सिंपल। नाउ आई कैन राइट वन मोर मेथड, और आई कैन राइट वन मोर लैम्बडा जो मुझे दे दे क्यूब। क्यूब के लिए क्या करना है आपको? बस यहाँ पर मुझे बस कॉल करना है क्यूब डॉट प्रोसेस, और यहाँ पर मुझे मिलेगा 1000। इजी। क्लियर है? नाउ वी हैव कपल ऑफ फंक्शनल इंटरफेसेस, उनका हम यूज करते हैं डेमो 4। Now see here, we have some couple of predefined functional interfaces such as runnable. तो runnable is a predefined functional interfaces, और यहाँ पर एक मेथड इसका नाम क्या है? रन। और वो कुछ एक्सेप्ट भी नहीं करती है और कुछ वैल्यू रिटर्न भी नहीं करती है, डज नॉट एक्सेप्ट एनीथिंग, डज नॉट रिटर्न एनीथिंग। नाउ हाउ डू आई क्रिएट अ सब क्लास ऑफ दिस? पेरेंट क्लास रेफरेंस, पेरेंट क्लास रेफरेंस और चाइल्ड क्लास ऑब्जेक्ट। तो आपको चाइल्ड क्लास के लिए आप ऐसे कर सकते हो, सर एनोनिमस क्लास, आप एनोनिमस क्लास कर सकते हो, आप यहाँ पर बोल सकते हो रनिंग, लेकिन आपको ये करने की जरूरत है नहीं, आप डायरेक्टली उसको रिप्लेस कर सकते हो विद लैम्बडा। आपको कैसे करना है? आई विल टेल यू दैट। पहले तो मेथड पूरा कॉपी करो, कॉपी द मेथड, और मेथड का ये बॉडी सेमीकोलन, ये हो गया आपका। तो ये पब्लिक हटा दो, एब्स्ट्रैक्ट हटा दो, वॉइड हटा दो, रन हटा दो, सब कुछ हटा दो। मतलब बस क्या रखना है आपको? पैरामीटर जो है तो रख दो, और इन दोनों को कंबाइन करो यूज।
मेथड बॉडी हो गया और मेथड बॉडी में आपने यहाँ पर प्रिंटिंग लिख रहा। ठीक, नाउ सिंस योर lambda method or that particular method has only one statement, you do not need to write curly braces also. You do not need to write curly braces also. How do I call this method? Runnable dot run. तो आपने बहुत सारी चीजें करी, आपने एक सब क्लास क्रिएट करा दैट इज ऑफ टाइप रनेबल, दैट ओवरराइड्स रन मेथड, डिफाइन किया और उस मेथड को आप कॉल कर। सिंपल, सिंपल है, ओके परफेक्ट। Now I have another functional interface. Now this is very interesting. Now this time I am going to use something called as predicate. और मैं इसको आप खुद का भी बना सकते हो, बट आई विल यूज प्रेडिकेट। नाउ प्रेडिकेट इज अ फंक्शन इंटरफेस और उसके अंदर एक मेथड है जिसका नाम है टेस्ट। क्या नाम है? टेस्ट। तो कुछ देना पड़ेगा आपको। नाउ दिस मेथड एक्सेप्ट सम इनपुट, कोई भी टाइप का इनपुट एक्सेप्ट कर सकती है, वो इंटीजर हो सकता है, नंबर हो सकता है, कोई भी टाइप का। टी मतलब टाइप। अगर आप चाहते हो आप स्पेसिफाई भी कर सकते हो कि इनपुट, इसको इनपुट कौन से टाइप का हो सकता है, यू कैन स्पेसिफाई दैट। पहले तो बूलियन हटा दो, मेथड का नाम हटा दो और ये इनपुट बोल सकते हो आप, इनपुट है राइट इसे। और आपको रिटर्न क्या करना है, व्हाट इज द वैल्यू यू आर गोइंग टू रिटर्न, रिटर्न ट्रू और फॉल्स, यही करने वाले आप राइट। लिखा आपने। नाउ इसको आप कुछ भी इनपुट दो, आउटपुट क्या आने वाला है आपको, ट्रू। लेकिन ये कुछ मतलब का ही नहीं ना, हमेशा क्या करेगा वो, रिटर्न ट्रू ही करेगा, तो कुछ मतलब नहीं है। तो आप इनपुट का टाइप स्पेसिफाई कर सकते हो कि आप इनपुट कौन से टाइप का देना चाहते हो। अगर मैंने इनपुट दिया इंटीजर, तो इंटीजर के साथ अब ये इसका टाइप क्या बन गया, इंटीजर का टाइप क्या बन गया, इंटीजर। सो नाउ द टाइप ऑफ दिस इनपुट इज इंटीजर। अभी ये टेस्ट मेथड जो हमने लिखी थी, कॉपी पेस्ट करी थी, तो टेस्ट मेथड एक्सेप्ट क्या करती है, इंटीजर, और रिटर्न क्या करती है, बूलियन। अब मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ अगर जो नंबर है, इनपुट क्या है अभी आपका, नंबर, जो भी इनपुट है, अगर वो नंबर डिविजिबल बाय 0 है तो रिटर्न करेगा ट्रू, और डिविजिबल बाय 2 नहीं है तो रिटर्न करेगा फॉल्स। तो मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ इज इवन। अगर ये मेथड रिटर्न करता है ट्रू तो इसका मतलब क्या, अभी यहाँ पर मैं मेथड कॉल इज इवन डॉट टेस्ट, तो मैं यहाँ पर नंबर दे रहा हूँ 100। क्या मतलब बना इसका, मेथड कौन सी कॉल करे आपने, टेस्ट, इनपुट दिया 100, 100 मॉड 2 इक्वल इक्वल टू 0, ट्रू, तो रिटर्न आएगा ट्रू और यहाँ पर आएगा फॉल्स। क्लियर है, ट्रू फॉल्स। नाउ यू कैन वर्क ऑन दिस, बहुत सारी इसके ऊपर आप कर सकते हो काम। अभी यहाँ पर लेट से मैं कुछ डेमो 6 लिख रहा हूँ और यहाँ पर इंस्टेड ऑफ इंटीजर नाउ आई एम गोइंग टू एक्सेप्ट स्ट्रिंग्स, और आई एम टू एक्सेप्ट स्ट्रिंग्स, और जो भी मुझे स्ट्रिंग पास करेगा मैं आप लिख सकता हूँ इज कोई भी चेक लिख सकते हो या रेफरेंस लिख सकते हो, स्ट्रिंग प्रेडिकेट, और आप यहाँ पर लिख सकते हो मैं इनपुट कौन सा टाइप हुआ, एस टी आर, स्ट्रिंग होगी एस टी आर, कोई भी नाम दे सकते हो, नॉट ओनली एस टी आर, आप इनपुट भी लिख सकते हो, जो भी है। इनपुट अभी कौन से टाइप का है, स्ट्रिंग टाइप का, तो मैं यहाँ पर रिटर्न कर सकता हूँ जो भी इनपुट है। अब उसके ऊपर मैं बोल सकता हूँ इनपुट डॉट इज एम्प्टी या स्टार्ट्स विद एस। क्या बोल रहा हूँ मैं, अब जो भी एस टी आर है मेरा रेफरेंस, चेक, जो भी नाम हो सकता, अब मैं इसे पास करूंगा एस टी आर चेक मेथड को, टेस्ट मेथड इनपुट पास करूंगा, लेट्स से now if this particular string starts with s it is going to return me true, otherwise false। easy, perfect।
Now this time I am going to take, now predicate is famous one, then we have consumer also, supplier also and functional. अभी predicate क्या करता था? What predicate was doing? Returning only true false. नंबर कोई भी इनपुट एक्सेप्ट कर सकता है और आउटपुट क्या जनरेट करेगा? ट्रू फॉल्स बेस्ड ऑन। तो ये मोस्टली प्रेडिकेट कब यूज होता है? टेस्टिंग, तब आपको कुछ टेस्ट करना है, फिल्टर करना है, इसमें हो राइट प्रेडिकेट। नाउ आई विल टेक something called as consumer. Consumer is also an predefined functional interface. कंज्यूम करना मतलब एक्सेप्ट करना कुछ। मेथड नेम इज एक्सेप्ट। क्या मेथड का नाम? एक्सेप्ट। मेथड एज इट इज पेस्ट कर रहा हूं। अभी देखो आप, कंज्यूमर के अंदर कौन सी मेथड है? एक्सेप्ट। कंज्यूम करना, एक्सेप्ट करना। तो कंज्यूमर हैज अ मेथड एक्सेप्ट। इट डज ओनली एक्सेप्टिंग पार्ट, डज नॉट रिटर्न एनी वैल्यू। तो बस एक्सेप्ट करके उसके साथ जो भी करना है आप कर सकते हो। तो यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ वॉइड। वॉइड आपको लिखने की जरूरत है नहीं, एक्सेप्ट भी। तो टाइप आप बोल सकते हो कौन से टाइप का डेटा है, तो आप टाइप यहाँ पर दे सकते हो कि मैं इंटीजर एक्सेप्ट करूंगा, स्ट्रिंग एक्सेप्ट करूंगा, जो भी बोलना है आप यहाँ पर। इसे जेनरिक बोला जाता है। जेनरिक मस्ट टाइप स्पेसिफाई करते हो आप यहाँ पर। तो इसका इनपुट कौन से टाइप का रहेगा अभी? अच्छा, अभी इनपुट इनपुट रहेगा और ये आपका, इसके साथ जो करना है आप करो, मतलब प्रिंट करना है मुझे या जो भी है। तो जो भी मैंने यहाँ पर एक्सेप्ट क्या किया स्ट्रिंग, तो मैं यहाँ पर बोल सकता हूँ str, बस प्रिंट करना है मुझे, दैट्स इट। और एक ही स्टेटमेंट है मेरा, रिप्लेस कर सकते, आपको ये कुछ लिखने की जरूरत है नहीं। तो आप जो भी रेफरेंस है कंज्यूमर, कंज्यूमर डॉट एक्सेप्ट, और आप बोल सकते हो गुड मॉर्निंग, जो भी है। तो बस ये क्या करेगा? प्रिंट करेगा। इसका काम क्या है? प्रिंट करना। जो आपने एक्सेप्ट मेथड की डेफिनेशन लिखी, वो मेथड क्या करती है? जस्ट प्रिंटिंग समथिंग, दैट्स इट, सिंपल। सिमिलरली वी हैव सप्लायर आल्सो। जैसे कंज्यूमर क्या करते हैं? कंज्यूम करते हैं। तो सप्लायर का काम क्या होगा? सप्लाई करना कुछ। तो सप्लायर इज आल्सो प्रीडिफाइंड फंक्शनल इंटरफेस, प्रीडिफाइंड फंक्शनल इंटरफेस, और उसके अंदर मेथड है गेट। मेथड का नाम क्या है? गेट। गेट मेथड एक्सेप्ट नहीं करता कुछ, बस कुछ वैल्यू रिटर्न करता। तो कौन से टाइप की वैल्यू रिटर्न करना चाहते हो आप, ये बोल सकते हो व्हाट टाइप ऑफ वैल्यू यू आर एक्सपेक्टिंग। तो अगर मैंने बोला स्ट्रिंग, तो आई वांट अ स्ट्रिंग टाइप वैल्यू। और यहाँ पर देखो टी, टी मतलब कौन से टाइप का आउटपुट आप एक्सपेक्ट कर रहे हो। ये हटा दो, ये हटा दो, तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ स्ट्रिंग टाइप, सो आई एम एक्सपेक्टिंग। तो स्ट्रिंग इज सप्लाइड बाय दैट्स इट। नाउ आपको स्ट्रिंग आउटपुट मिलने वाला है, तो आप उसको प्रिंट कर सकते हो। सप्लायर डॉट गेट, रिटर्न क्या करने वाला है आपके लिए? स्ट्रिंग इज सप्लाइड बाय सप्लायर। वो वहां पर स्ट्रिंग इज सप्लाइड बाय, तो मुझे जब कुछ डेटा चाहिए, नॉट ओनली स्ट्रिंग, इंटीजर कुछ भी हो सकता है, स्ट्रिंग लिस्ट ऑफ हो सकता है, या मुझे कुछ डमी डेटा चाहिए या जो भी है, ये सप्लाई करके दे सकते, इट विल जस्ट दैट। So represents a supplier of result. There is no requirement that a new or distinct result should be written each time. ये आपको जो भी डेटा चाहिए वो दे देगा बस। ये हो गया आपका पहला था कंज्यूमर। कंज्यूमर बस एक्सेप्ट करता है, सप्लायर बस सप्लाई करता है, प्रेडिकेट क्या करता है? बस टेस्ट करता है, रिटर्न करता है ट्रू फॉल्स। अभी लास्ट वाला एक फंक्शन, क्या है? फंक्शन। फंक्शन क्या करता है आपका? इट विल एक्सेप्ट एज वेल एज इट विल रिटर्न द वैल्यू आल्सो, इट विल प्रोसेस समथिंग। द मेथड नेम इज अप्लाई। So we have a function. If you see function, function is a functional interface which accepts some type value as well as t, and t मतलब कौन से टाइप का इनपुट एक्सेप्ट करेगा, r मतलब रिटर्न टाइप। तो रिटर्न भी कौन सा, तो आप ये इनपुट एक्सेप्ट भी करेगा। अब यहाँ पर मैंने बोला कि स्ट्रिंग एक्सेप्ट करेगा स्ट्रिंग और रिटर्न करेगा इंटीजर, ऐसे मैंने बोला उसको। फंक्शन मेथड का नाम क्या है? देखो आप, आर अप्लाई। तो ये आर अप्लाई हटा दो, इनपुट कुछ एक्सेप्ट करने वाला है, इनपुट क्या एक्सेप्ट करने वाला है? वो स्ट्रिंग। और आउटपुट क्या देने वाला है?
इंटीजर, तो मैं यहाँ पर बोल सकता हूँ स्ट्रिंग डॉट लेंथ, लेंथ रिटर्न करूंगा मैं। आई विल एक्सेप्ट अ स्ट्रिंग, आई विल रिटर्न द लेंथ, सिंपल। आप बोल सकते हो फंक्शन डॉट अप्लाई, और यहाँ पर लिख रहा हूँ मैं लेट्स से डॉट फीचर्स, ये मुझे रिटर्न में क्या कर देगा, मैंने स्ट्रिंग दे दिया एज ए इनपुट, क्या दिए मैंने स्ट्रिंग, और एज आउटपुट मुझे मिलेगा उसका लेंथ, हाउ मेनी कैरेक्टर्स। देयर आर 23 कैरेक्टर्स, सिंपल। Now next, we have done with the supplier, we are done with the consumer, we are done with the runnable function, predicate. Now there are two things more. Supplier, by consumer. We'll talk about that also. आपके पास एक और है, by supplier बात करते, by function also we'll talk about. तो by, अब देखोगे यहाँ पर by predicate. By predicate क्या है? It is also functional interface. बट यहाँ पर क्या करता है, दो इनपुट एक्सेप्ट करता है, बाय मतलब टू, तो ये दो चीजें एक्सेप्ट करेगा बाय प्रिडिकेट, और आप स्पेसिफाई कर सकते हो क्या स्ट्रिंग या इनपुट जो भी है। तो मैं यहाँ पर इनपुट स्टार्ट स्ट्रिंग स्ट्रिंग आप दोनों भी कर सकते हो, दो स्ट्रिंग एक्सेप्ट कर सकते हो बाय प्रिडिकेट, और मैं रिटर्न कर सकता हूँ। इसका मेथड का टाइप क्या है, सेम ही है, रिटर्न बुलियन ही करने वाला है, लेकिन बस आउटपुट इनपुट दो होंगे। तो बुलियन हटाना है, टेस्ट हटाना है, दो इनपुट रहेंगे, क्या इनपुट रहेंगे, दो स्ट्रिंग स्ट्रिंग, दोनों स्ट्रिंग स्ट्रिंग मैंने बोली, str1 str2, और मुझे रिटर्न करना है ट्रू और फॉल्स। मैं ट्रू और फॉल्स कैसे बोलूंगा, अगर दोनों का लेंथ सेम है तो मैं बोलूंगा दे आर इक्वल, जो भी आपका कंडीशन जो भी हो सकता है आप स्पेसिफाई करो। तो str डॉट इक्वल्स इग्नोर केस str2, दोनों इक्वल है तो ये रिटर्न करेगा ट्रू, अदरवाइज रिटर्न करेगा फॉल्स। बाय प्रेडिकेट डॉट टेस्ट, और यहाँ पर आप दे सकते हो दो स्ट्रिंग्स एबीसी एबीसी, रिटर्न करेगा ट्रू मुझे। तो बाय प्रेडिकेट इज आल्सो फंक्शनल इंटरफेस मेथड विच टेस्ट, इसमें बाय क्या है, दो इनपुट एक्सेप्ट करेगा बस, ट्रू, सिंपल। नाउ लेट्स टेक दिस अदर एग्जांपल, बाय प्रेडिकेट है, वैसे ही आपके पास क्या है, तो बाय सप्लायर भी है आपके पास, सॉरी, हाँ बाय कंज्यूमर है आपके पास, सप्लायर की जरूरत नहीं, एक ही वैल्यू रिटर्न करना है। बाय कंज्यूमर ये क्या करेगा आपको, देखो आप, बाय कंज्यूमर व्हाट डू यू थिंक, इट विल एक्सेप्ट टू पैरामीटर्स, प्रेडिकेट, बाय प्रेडिकेट में दो इनपुट एक्सेप्ट कर रहा था, यहाँ पर भी दो इनपुट एक्सेप्ट कर रहे हैं। बाय कंज्यूमर दोनों आप बोल सकते हो क्या एक्सेप्ट करना है, तो मैं दोनों स्ट्रिंग और एक इंटीजर दे सकता हूँ, तो जो भी आपको करना है उसके साथ कर सकते हो बाय कंज्यूमर, और मेथड का नाम क्या है, सेम एज इट इज एक्सेप्ट, बस डेटा एक्सेप्ट होगा, कुछ होगा नहीं, रिटर्न कुछ वैल्यू नहीं होगा। दोनों को कंबाइन करने के लिए मैंने यहाँ पर स्टेटमेंट लिखा है, तो वॉइड हटा दो, एक्सेप्ट हटा दो, ये जरूरत है नहीं। तो यहाँ पर इनपुट, पहला इनपुट क्या होगा, str होगा, और दूसरा होगा नंबर। आपको इनके साथ क्या करना है आप बोल सकते हो, आई विल से str, और प्रिंट कर सकते हो आप st, और उसमें नंबर्स ये सारी से प्रिंट कर रहा हूँ, दो इनपुट एक्सेप्ट करके बन गया बाय कंज्यूमर। क्या हुआ, हमने कॉल ही नहीं किया ना उसको, बाय कंज्यूमर डॉट एक्सेप्ट, और एक्सेप्ट करेंगे एबीसी और 20, बस वैल्यू पास करेंगे, मेथड कॉल हो जाएगा, और यहाँ पर ये वैल्यू प्रिंट हो जाएगी। कुछ नहीं कर रहे हम, बस मेथड डिफाइन कर रहे हैं और मेथड को कॉल कर रहे हैं, एबीसी एंड 12, क्लियर है, परफेक्ट। So this is your lambda expression, your lambda expression. So where I was needing lambda expression is the highest used thing in Java 8. तो आप सबसे ज़्यादा आपको lambda देखने को मिलेगा
गोइंग फॉरवर्ड। अभी लैम्बडा एक्सप्रेशन के आगे भी एक और चीज है, मेथड रेफरेंस। अभी हम अब टेक्निकली इफ यू सी दिस व्हाट वी आर टेक्निकली डूइंग, इफ यू आर राइटिंग अ लैम्बडा एक्सप्रेशन इज नथिंग बट वी आर राइटिंग मेथड ओवरराइड। हम खुद मेथड डिफाइन कर रहे हैं, राइट? हम क्या कर रहे हैं, हम खुद मेथड डिफाइन कर रहे हैं यहाँ पर। सी हियर, हर तीनों, अभी ये तीनों वे में आप देखो, देयर आर थ्री वेज, ट्रेडिशनल वे, एनोनिमस वे एंड लैम्बडा वे। तीनों में आप क्या कर रहे हो, खुद मेथड डिफाइन कर रहे हो। तीनों में आप खुद मेथड डिफाइन कर रहे हो, यहाँ पर भी खुद मेथड डिफाइन कर रहे हो, यहाँ पर भी खुद मेथड डिफाइन कर रहे हो। So there is alternative option also. So instead of you defining the method, so we can use some other reference. मतलब हम यहाँ पर मेथड का बॉडी नहीं लिखेंगे, हम खुद मेथड का बॉडी नहीं लिखेंगे। हम क्या करेंगे, हम किसी और मेथड का रेफरेंस देंगे जो एग्जैक्टली सेम काम करता है। आपने कॉलेज के टाइम या स्कूल के टाइम देखा होगा। इस क्वेश्चन का आंसर के लिए रेफर क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर है, उसके नीचे लिखा था, एक नोट लिखा होता है कि इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के आंसर के लिए रेफर क्वेश्चन नंबर 12 या क्वेश्चन नंबर 19। वो रेफर क्यों किया होता है, तो अवॉइड द डुप्लीकेशन, क्योंकि सेम मेथड है ना, सेम आंसर है। अभी मुझे मेथड लिखना है लेकिन ऑलरेडी उसके जैसा एग्जैक्ट डिट्टो मेथड ऑलरेडी अवेलेबल है, तो फिर से आप क्यों लिखोगे? आप बस बोलो कि जब भी कोई मुझे कॉल करेगा मैं उसे वहां पर रेफर करूँ। तो रेफर आप स्टैटिक मेथड को कर सकते हो, इंस्टेंस मेथड को कर सकते हो, कंस्ट्रक्टर को भी कर सकते हो। समझ में आ रहा है? हम लैम्बडा एक्सप्रेशन लिखो या एनोनिमस क्लास लिखो या ट्रेडिशनल वे लिखो, तीनों में हम खुद फिर से मेथड डिफाइन कर रहे हैं। वी आर राइटिंग द मेथड वंस अगेन, वी आर डिफाइनिंग द मेथड once again. So instead of we defining the method, if there is already method available, why not use that method? So whenever someone calls our method, which is we have defined, so instead of we writing the method once again, we will just give a reference to an already existing method. I will just explain this, how does this works. What is method reference? What is method reference? जो भी आपने अभी तक लैम्बडा के बारे में चीजें पढ़ी है, ये सारी आपको यहाँ पर, it is a Javaite feature. It is also very good feature. It is a Javaite feature. किसी ने पूछा आपको तो क्या है, एक Javaite का feature है. So this is an awesome way, awesome, shorter, concise way of implementing functional interfaces. Functional interface. So method reference concept क्या करता है इसमें? Refers to method reference instead of implementing the abstract method, once again it gives the reference to already existing method. ये बहुत सही तरीका है, आप खुद लिखने से अच्छा है। एग्जाम्पल, तो दिस इज काइंड ऑफ टोपी पहनने का काम है इधर, बाकी ज्यादा कुछ नहीं कर रहे थे। आई विल टेल यू what is the syntax. So we can give reference to the static method, instance method and constructor. Now static method के लिए कैसा syntax है? Syntax is, so we can give reference of static method, instance method and constructor. Syntax is very simple. Class name, colon and method name. That's it.
इंस्टेंस मेथड का सिंटैक्स बहुत सिंपल है, रेफरेंस रेफरेंस और यहाँ पर कोलोन कोलोन मेथड नेम, सिंपल। और कंस्ट्रक्टर के लिए आपको यहाँ पर यूज करना है क्लास नेम यूज करते थे, और यहाँ पर हम यूज करते हैं न्यू, आई थिंक। विल टॉक अबाउट दिस सिंटैक्स, डोंट वरी। क्लियर यहाँ तक? ओके, एग्जाम्पल, लेट्स सी द एग्जाम्पल। Okay, so I have an interface which has name, let's say A, और इसके अंदर एक मेथड है, का काम है बस कुछ रिटर्न नहीं करना, बस एक्सेप्ट void एक्सेप्ट मेथड का नाम है, और ये एक्सेप्ट क्या करती है, स्ट्रिंग एक्सेप्ट करती है, स्ट्रिंग। नाउ कैन यू टेल मी हाउ डू आई क्रिएट अ सब क्लास ऑफ दिस? पहले तब के एनोनिमस क्लास है, ट्रेडिशनल वे है, वी विल नॉट यूज दैट, आई विल डायरेक्टली राइट दिस ए इक्वल टू लैम्बडा एक्सप्रेशन एक्सेप्ट str, और यहाँ पर प्रिंट करेंगे हम str। प्रिंट क्या कर रहे हैं हम, एज इट इज जो भी इनपुट दिया हम उससे बस प्रिंट कर रहे हैं। तो a डॉट एक्सेप्ट, और यहाँ पर देंगे हम, तो एक्सेप्ट मेथड को हमने ये कॉल किया, कंट्रोल यहाँ पर आया, दिस मेथड डिफाइन किया, क्लास डिफाइन किया, और मेथड हमने यहाँ पर डिफाइन हो गया। यहाँ से फिर से अभी मेथड ये बस क्लास डिफाइन हो गया, यहाँ से मेथड आपने कॉल करी, कंट्रोल कहाँ पर आया, यहाँ पर, तो ये आपको यहाँ पर प्रिंट होगा, दैट्स इट, राइट। बट आप इसे और सही तरीके से कर सकते हो, आपको ये सब कुछ लिखने की ज़रूरत नहीं है, आप उसको एक लाइन में लिखो ऐसे, ठीक है। अभी सेम चीज़ मैं करने वाला हूँ, लेकिन इन इंस्टेड ऑफ राइटिंग द लैम्बडा हम यूज़ करेंगे अभी रेफरेंस, ये आपने यूज़ किया था। परफेक्ट। अभी यहाँ पर आप लिखोगे बहुत सिंपल, a1 इक्वल टू, अभी आप क्या कर रहे हो टेक्निकली, मेथड आपने लिखा है, लेकिन उस मेथड के अंदर आप क्या कर रहे हो, प्रिंटिंग का काम कर रहे हो, कुछ इनपुट एक्सेप्ट कर रहे हो और उससे क्या कर रहे हो, प्रिंट कर रहे हो। तो सेम चीज हमारा एक मेथड करता है, क्या है वो, सम डॉट आउट कोलन कोलन ln कोलन कोलन है, और मैं अभी यहाँ पर करता हूँ a1 डॉट एक्सेप्ट, और इसको जो भी आप दोगे, गुड मॉर्निंग जो भी है, डन। तो इंस्टेड ऑफ राइटिंग दिस, देखो यहाँ पर उन्होंने खुद बोल दिया कि आप फिर से क्यों लिखोगे गुड मॉर्निंग गुड इवनिंग, जाओ, ये आईडी ने खुद रेफरेंस बोल दिया कि भाई आप फिर से मेथड क्यों डिफाइन कर रहे हो, कैन replace with method reference. Method reference is a smart way to provide the implementation for functionality. Instead of rewriting the method once again, take just reference of this. अभी मैंने कौन से मेथड का रेफरेंस लिया है, मेथड का। अभी यहाँ पर मैं एक और सिंपल एग्जांपल लेता हूँ, सॉरी। तो मेरे पास आई विल जस्ट रिमूव एवरीथिंग दिस, ये मेरा इंटरफेस है, और मैंने इस क्लास के अंदर एक मेथड लिखी है, ऐसी पहले से लिखी हुई कहीं तो, पब्लिक स्टैटिक वॉइड प्रिंट, और ये एक्सेप्ट करती है स्ट्रिंग, और इसका काम क्या है, प्रिंट करना, दैट्स इट। अब ये मेरे पास बहुत टाइम से मेथड डिफाइंड है ऑलरेडी, दिस इज अ स्टैटिक मेथड, स्टैटिक मेथड अवेलेबल, प्रिंट वन बोल सकते हो आप, बिकॉज आई एम गोइंग टू गिव मल्टीपल मेथड,
अब मुझे क्या करना है, इस पर्टिकुलर इंटरफेस का सब क्लास क्रिएट करना है, तो आई हैव दिस ऑप्शन ए इक्वल टू, अभी आपके पास एनोनिमस क्लास है, ट्रेडिशनल वे है, बहुत सारे हैं। यहाँ पर लैम्बडा एक्सप्रेशन भी है, तो लैम्बडा आप क्या कर सकते हो, आप एज इट इज लिखो और यहाँ पर लिखो आप ये, और स्टार्टिंग में ये सारी चीज़ें हटा दो और यहाँ पर प्रिंट कर दो आप एस। लेकिन आप टेक्निकली देखो आप क्या कर रहे हो, मेथड डिफाइन कर रहे हो आप खुद से डिफाइन कर रहे हो, राइट। और यहाँ पर आप ऐसे कॉल करोगे ए डॉट एक्सेप्ट और यहाँ पर दोगे जो भी लैम्बडा दिया एक्सेप्ट। Now, instead of you defining this method once again, we can write a2 equal to, so I can give reference of already existing method. So this method is already there. So why should I define the method? Once again, what I will do, what is the class name? Demo2. Demo class के अंदर एक method है जिसका नाम क्या है? That's it. तो जब भी कोई मुझे मेरी मेथड कॉल करेगा, कौन कॉल करेगा? a2 डॉट एक्सेप्ट, जो भी इनपुट देंगे मेथड रेफरेंस जो भी है, तो ये इनपुट किससे जाएगा डायरेक्टली, देखो यहाँ पर सी है, आई हैव जस्ट कॉल द मेथड रेफरेंस, और यहाँ से कंट्रोल कहाँ पर आने वाला है, देखो यहाँ पर मेथड कौन सी कॉल करी आपने, एक्सेप्ट, कंट्रोल है यहाँ पर, यहाँ से कौन सी मेथड कॉल करी, प्रिंट वन, दैट्स इट। नाउ वी गिव द मेथड ऑफ स्टैटिक रेफरेंस। ये मेथड कौन सी मेथड है, स्टैटिक मेथड। नाउ आई कैन डू द सेम थिंग विद द इंस्टेंस मेथड आल्सो। मैं इसे स्टैटिक की जगह पर इसे बना देता हूँ इंस्टेंस। तो इंस्टेंस मेथड के लिए क्या चाहिए होगा मुझे बताओ, इंस्टेंस मेथड का रेफरेंस देना है मुझे, दिस इज स्टैटिक मेथड रेफरेंस। अब मुझे क्या करना है, स्टैटिक मेथड हो गया मेरा, अभी मुझे फिर से a3 इक्वल टू, अब मुझे इस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाना है, किसका, डेमो2 क्लास का। मेरा मिल गया ऑब्जेक्ट डॉट प्रिंट, ऑब्जेक्ट बनाया मैंने, उसका रेफरेंस मिला मुझे डेमो2 कोलन कोलन। तो रेफरेंस कैसे दोगे, तो हाउ आर यू गोइंग टू यूज द मेथड रेफरेंस, पहले तो क्लास नेम दिया था, क्लास नेम कोलन कोलन स्टैटिक मेथड नेम रेफरेंस वेरिएबल और इंस्टेंस, दैट्स इट। अब मुझे क्या करना है, इस क्लास के अंदर जो कंस्ट्रक्टर होगा एग्जैक्टली सेम थिंग इट इज डूइंग, आई विल हैव अ कंस्ट्रक्टर आल्सो इन दिस पर्टिकुलर, कंस्ट्रक्टर भी लिख सकते हो आप, तो कंस्ट्रक्टर में यहाँ पर लिख रहा हूँ, कंस्ट्रक्टर का नाम क्या होगा, सेम एग्जैक्टली, और ये आपका कंस्ट्रक्टर, मेरे पास कंस्ट्रक्टर भी है। तो नाउ दिस इज द थर्ड थिंग आई एम गोइंग टू डू, व्हाट इज दैट, आई विल राइट कंस्ट्रक्टर वन मोर पब्लिक टू, ओके। नाउ आई विल, दिस इज द थर्ड टाइम, यहाँ पर आपने क्या किया था, प्रिंट टू और a3 डॉट एक्सेप्ट, और मैंने यहाँ पर इंस्टेंस मेथड रेफरेंस दे दिया, ये सेकेंड थिंग। और नाउ आई विल गिव, व्हाट इज द थिंग, a4 इक्वल टू, मेरे पास कंस्ट्रक्टर है अभी, तो डेमो2 कोलन कोलन न्यू, व्हाट वाज द सिंटैक्स, कोलन कोलन न्यू, व्हाट इज क्लास नेम, कोलन कोलन न्यू, और मुझे बस a4 डॉट एक्सेप्ट, और ये क्या है, कंस्ट्रक्टर मेथड रेफरेंस। बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट है, बहुत टोपी पहनने का काम कर रहे हैं, इंस्टेड ऑफ वी डिफाइनिंग आवर मेथड वी आर टेकिंग हेल्प ऑफ सम अदर थिंग। तो यहाँ पर स्टैटिक मेथड है, इंस्टेंस मेथड है, कंस्ट्रक्टर, ये सारी चीजें ऑलरेडी डिफाइंड है, मुझे बस उनका रेफरेंस देना। देखो यहाँ पर लैम्बडा एक्सप्रेशन से ट्राई किया, फिर स्टैटिक मेथड रेफरेंस, इंस्टेंस मेथड रेफरेंस, कंस्ट्रक्टर मेथड, क्लियर है कॉन्सेप्ट, ऑनलाइन प्लीज कंफर्म वंस, और इसके ऊपर जितना मेहनत कर सकते हो करो, लैम्बडा एक्सप्रेशन, एनोनिमस क्लास, मेथड रेफरेंस, जितना बार आप टाइम दे सकते हो, क्लियर है। ओके ललित,
ओके, परफेक्ट। हाँ, अभी आपके पास एक कंज्यूमर नाम का एक इंटरफेस था, राइट? कंज्यूमर, कंज्यूमर क्या करता है? कंज्यूम करता है। व्हाट इज कंज्यूमर डूइंग? एक्सेप्ट करता है, राइट? तो आप खुद मेथड लिखो। दिस इज फर्स्ट ऑप्शन। द फर्स्ट ऑप्शन जो भी है आप उसे प्रिंट आउट कर दो, और जो भी इनपुट देने वाला है कोई भी टाइप का रहने दो, इनपुट रहेगा। ये इनपुट आप उसे बस ये वॉइड एक्सेप्ट हटा दो। जो भी इनपुट देगा बस उसे प्रिंट कर दो। ये आपके पास पहला ऑप्शन, राइट? और एक ही स्टेटमेंट है तो आप इसको हटा के कर सकते हो। और इस चीज़ को और आप बेटर तरीके से कर सकते हो, कंज्यूमर डॉट एक्सेप्ट, और आप इसे जो भी इनपुट दे सकते हो। दिस इज लैम्बडा एक्सप्रेशन। और आप टेक्निकली क्या कर रहे हो? बस प्रिंट ही कर रहे हो, राइट? आप बस क्या कर रहे हो? प्रिंट ही कर रहे हो। तो व्हाट आई कैन डू, आई विल क्रिएट अनदर कंज्यूमर, कंज्यूमर वन इक्वल टू, अभी मुझे मेथड फिर से डिफाइन नहीं करना है। To print something on the console, there is already method present. Where is that method? Println method is there. Where is println method? System dot out, ये मिल गया आपको रेफरेंस, रेफरेंस कोलन कोलन println, दैट्स इट। और आप कॉल करो कंज्यूमर वन डॉट एक्सेप्ट, और यहाँ पर पास करो मेथड रेफरेंस। परफेक्ट, याद रहेगा। Now, whatever the number of examples you can practice on this, try writing different lambdas, different method reference. So this will be very fixed in your mind. Then you will be, it will be very easy. It will be very easy for you guys. ठीक? Now, multi-threading सीखना है आपको. How do we create threads? I'm going to create threads like. So let me tell you how do I. There is one more thing I will just tell you. Uh, I have now runnable. Runnable का टाइप कैसे बनाऊँ मैं? रनेबल, तो मैं इसके ऐसे बना सकता हूँ, ये मेरा रनेबल सब क्लास, राइट? मैं इसको और तरीके से सिंप्लीफाई कर सकता हूँ, जो भी रनेबल है उसको प्रिंट करता है बस वो, राइट? मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, ये भी कर सकता हूँ मैं। तो मुझे क्या करना है, जो भी रन मेथड है उसके अंदर आपको क्या करना है? रन मेथड ही लिखना है आपको, राइट? ये रन मेथड आपका, और मैं यहाँ पर लॉजिक लिख सकता हूँ, रन मेथड इम्प्लीमेंटेड इम्प्लीमेंटेड लैम्बडा एक्सप्रेशन। परफेक्ट। नाउ अब मुझे क्या करना है, इस पर्टिकुलर रेफरेंस को पास करना है किसी को। तब थ्रेड एक नाम का क्लास है, और ये एक्सेप्ट क्या करता है? रनेबल। तो मुझे क्या करना है, ये इनपुट पास करना है। तो थ्रेड एक्सेप्ट, थ्रेड कॉन्सेप्ट एक्सेप्ट, थ्रेड कंस्ट्रक्टर एक्सेप्ट द इनपुट ऑफ टाइप। तो मैं सब कुछ अभी एक लाइन में लिख सकता हूँ इसको, ये पूरा रिप्लेस करता हूँ वन लाइन में, और मैं इसको इंस्टेड ऑफ राइटिंग दिस सेपरेटली, कैन आई राइट डायरेक्टली लाइक दिस? वंस अगेन, ये अभी रनेबल ऐसे दे रहा था मैं, राइट? तो मैं इसको डायरेक्टली, ये अलग से क्यों स्टोर करना है मुझे? डायरेक्टली यही लिख देता हूँ ना, ये सामने वाला ये सारी चीज, मैं इसको ऐसे लिख देता हूँ। दूसरा लाइन लिखने की जरूरत ही नहीं पड़ी मेरे को। तो थ्रेड क्लास एक्सेप्ट, अभी इसको देख के समझ में आ रहा है कुछ आपको? देखो थोड़ा, ये थ्रेड क्लास का कंस्ट्रक्टर, ये इनपुट है। तो व्हाट इज दिस इनपुट? देख के समझ में आ रहा है आपको कौन सा टाइप का इनपुट है? ये रनेबल ऐसे लिखा था हमने। तो रनेबल इज द इनपुट टू द थ्रेड क्लास। तो इसको देख के समझ में आ रहा है? तो देख के तो समझ में नहीं आ रहा है क्या कौन से टाइप का इनपुट है, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि इट इज ऑफ टाइप
रनेबल कौन से टाइप का इनपुट है? रनेबल टाइप। क्लियर है? ये यही यूज करने वाला हूँ मैं, रनेबल यूज करेंगे हम, यूज करेंगे। राइट, क्लियर है? हाउ आर वी गोइंग टू यूज दिस? अभी इसको जितना टाइम प्रैक्टिस कर सकते हो करो, क्योंकि कल हम पढ़ने वाले हैं फाइल्स। मुझे फाइल प्रोसेसिंग करना है, फाइल सॉर्टिंग करना है बेस्ड ऑन देयर साइज, बेस्ड ऑन देयर नेम, बेस्ड ऑन देयर एक्सटेंशन। मेरे पास लिस्ट ऑफ फाइल्स है, उस पर्टिकुलर फाइल में से मुझे चेक करना है, मेरे पास 10,000 फाइल्स का लिस्ट है, उसमें से मुझे चेक करना है कि कौन से फाइल का मुझे सॉर्ट करना है बेस्ड ऑन देयर साइज, बेस्ड ऑन देयर नेम। मुझे फिल्टर करना है, जो फाइल का नाम ए से स्टार्ट होता है वो फाइल का लिस्ट मुझे एक फोल्डर की फाइल दूसरे फाइल फोल्डर में कॉपी करनी है, पेस्ट करनी है, लेकिन कौन सी? सारी नहीं, जिनका नाम स्टार्ट होता है लेट्स से एस से, वो सारी फाइल्स मुझे शिफ्ट करनी दूसरे फोल्डर में। ऐसी बहुत सारी रिक्वायरमेंट्स है, तो उसके लिए मैं लिखने वाला हूँ लैम्बडा। आज पूरा टाइम उसके फोकस करो, और कल एक सेशन के अंदर अपन फाइल हैंडलिंग खत्म करने वाले। फाइल में क्या क्या ऑप्शन है? बहुत सिंपल सी है। पहले तो फाइल होना जरूरी है, फाइल या फोल्डर। फाइल कहाँ पर हो सकता है? फोल्डर के अंदर। तो आप फोल्डर क्रिएट कर सकते हो, फोल्डर के अंदर फाइल क्रिएट करना, ये हो गया आपका फाइल के अंदर क्रिएट होना। फाइल क्रिएट करना, रीनेम करना, उसको डिलीट करना, उसके बाद उसकी परमिशन सेट करना, उसकी लेंथ चेक करना, ये सारी चीज़ें हो गई। एक फोल्डर के अंदर फाइल उसका लिस्ट करना, ये सारी चीज़ें। उसके बाद फाइल के ऊपर रीड राइट ऑपरेशन है, दैट्स इट। फाइल में से रीड करना है और फाइल में राइट करना, दैट्स इट। उसके लिए हमारे पास कुछ क्लासेस हैं, 4 5 10 एक क्लासेस है, ज़्यादा कुछ नहीं है। ठीक है, फॉर टुडे वी विल स्टॉप, आई वोंट बग यू। ये सारी चीज़ें आप गो थ्रू करो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। लेट मी टेल यू वंस अगेन, अगर आप ये नहीं करोगे तो आप आगे जाके बहुत सारी चीज़ें मिस करने। कलेक्शन में मैं कंपैरेटर ऐसे लिख, आई एम गोइंग टू क्रिएट द सब क्लास ऑफ कंपैरेटर यूज लाइक दिस। कंपेरेबल, कंपैरेटर, उसके बाद सॉर्टिंग, सब कुछ मैं इसी तरीके से करने वाला हूँ। मल्टी थ्रेडिंग में भी थ्रेड्स यूज़ करना, और ये मल्टी थ्रेडिंग में भी है लैम्बडा यूज़ करने वाला हूँ। कल फाइल हैंडलिंग में भी यही यूज़ करने वाला हूँ। आगे स्प्रिंग या आपका JDBC यूज़ कर लो, हर जगह पर ये सबसे ज़्यादा यूज़ होता है, इसको आप स्किप नहीं कर सकते। ठीक है।